गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्कार। लंच के बाद का मौसम ढीला है और मुझे पता है जागना मुश्किल है। कुछ कहानियाँ जागने के लिए सुनाई जाती हैं और कुछ कहानियाँ रात में सोने के लिए। तो I'll start my session with a story which is not a fictitious one, it's not a fiction, it's a real-time story of our own organization, of our own projects that we've been doing for past couple of years. My name is Dr. Juhi Garg and I'm founder of DiveNPro Foundation and DiveNPro Private Limited, which is a impact first organization, India's all-women outsourcing and capability center. And we've been doing a lot of projects in menstrual health, hygiene, sanitation for past 3 years. In one of our projects where we go deep into hills in different regions of Uttarakhand and talk to women of all ages about menstrual health, hygiene and sanitation, we sensitize them. We also distribute menstrual cups, and we also, we were the first company which ran the menstrual cup helpline, which is a model in itself. So कहानी कुछ ऐसी है कि उत्तरकाशी का एक हाई स्कूल था and we were talking to these girls and this girl told me, मैम मैंने पूछा कि तुम बच्चे क्या कर रहे हो, तो उसने कहा मैम हम ये कर रहे हैं. She was looking a little elder to what her school class was. तो मैंने पूछा कि आप क्या कर रहे हो. उसने कहा मैम आपको पता है कि यहाँ पे ये हालात हैं कि मैंने अपने क्लास 10th का एग्ज़ाम मिस कर दिया. मैंने कहा क्यों. कहा मैम मैंने ही नहीं, मेरे साथ और करीबन 4 लड़कियां हैं जिन्होंने क्लास 10th का एग्ज़ाम मिस किया, बोर्ड एग्ज़ाम मिस किए. क्यों? क्योंकि जिस जगह सेंटर पड़ा था वहाँ पर प्रॉपर टॉयलेट नहीं था एंड आई वॉज मेंस्ट्रुएटिंग. My heart broke. This is the situation. There's another story I'll tell you from a different district at a deeper Himalayan region. I was speaking to a few community people, farmers, women farmers. सिर्फ नाम की farmer होती हैं, rights भी नहीं होता. So I was speaking to them. They told me, we were telling them about the menstrual cup and usage and hands-on training. And she told me, मैम आप बात क्या कर रहे हो? पूरी ज़िंदगी ऐसी बीत गई. They were flowing free all their life. They never used a single product. So from that, we come from that state, all of us. We live in deep Himalayan region, and the situation is very, very, very different from Maharashtra, Gujarat, Kerala, Karnataka. We are different people with different geography, with different needs, and we need to understand this deeply. सबसे खूबसूरत बात यह है कि उस समस्या से आज हम यहाँ पे आके खड़े हैं कि जहाँ पे भारत सरकार ने मेंस्ट्रुअल हेल्थ हाइजीन सैनिटेशन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेंडिचर नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट किया है. और हम खुशनसीब हैं कि आज हमारे सामने 2 बहुत ही सेलिब्रेटेड लीडर्स हैं फ्रॉम गवर्नमेंट स्टेक होल्डर. Dr. Geeta Khanna is already everyone knows and she doesn't need any introduction. Both the Geetas. So काफ़ी गीता ज्ञान होने वाला है यहाँ पर आज. तो Dr. Geeta Khanna is heading Bal Ayog and she's also by profession, by her research and study, she's a doctor for children, right? Yes, she is. Yes. So, and of course Dr. Geeta Jain is the principal and she's dean of government Doon Medical College. So 2 गीताएं और 2 डॉक्टर्स हमें बहुत कुछ बताने वाले हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हुआ है अंडर आर्टिकल, इतना मेजर चेंज हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है. और एक मैंडेट उसके साथ और आ गया कि हमें 3 महीने में कंप्लायंस पूरा करना है. मैम उत्तराखंड या हिमाचल या जम्मू, जो हमारे ऐसे स्टेट्स यहाँ पे बैठे हैं, इसकी कितनी संभावना है डॉक्टर गीता खन्ना? देखिए, संभावना तो कभी भी शून्य नहीं होती है. संभावनाएं तो अपरंपार हैं और अगर हम संभावनाओं को ना सोचें और संभावनाओं पे काम ना करें तो आगे की जर्नी तो कभी ट्रैवल ही नहीं होगी. हम जब भी कोई जर्नी शुरू करते हैं तो मंजिल तक की संभावना दिल में होती है, आशा होती है और तभी हम वहाँ तक पहुँचते हैं. सो लिटिल ऑफ गीता ज्ञान देयर. बट नाउ कमिंग टू द फैक्ट्स, कोर्ट ने कह दिया 3 महीने में, और अब तो कहे हुए भी कितने दिन हो चुके हैं, उसमें से more than 50% of that duration is already gone.
लेकिन कोर्ट जब इस तरह का कोई आदेश देता है तो क्या उसने, आपने कहा कि हमने एक्सपेंडिचर से उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करा है, पर किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान के आगे एक ROI शब्द है जी। जो हमारे बहुत सारे अधिकारी गण उसके आगे लगाएंगे जब उसको प्रोसेस करने लगेंगे. सो व्हेन वी इवन विद इन्वेस्टमेंट इफ़ वी वांट टू पुट ब्रेक्स तो हम तो RI पूछ लेंगे कि साहब इतना करके हमें मिलेगा क्या. हम आज तक शायद यही पूछते आ रहे हैं. जागना होगा कम्युनिटी को. राइट्स कभी भी बिना कम्युनिटी अवेकनिंग के नहीं आते. बिल्कुल. लॉज तो ब्रिटिश काल में भी कब कहा था उन्होंने कि जो काली चमड़ी वाले उनका अधिकार कम है, यहाँ अगर वो कहते थे यू नो डैश एंड इंडियंस नॉट अलाउड, तो इट वाज नॉट एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. दीज वर हेयरसेज एंड प्रैक्टिसेस. वो ऐसा कर कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहते थे हम बिल्कुल प्रॉपर जज बैठता था, किसी भी बात का ट्रायल होता था, बट हकीकत क्या थी हम सब जानते हैं. और स्वराज मिला तो रिवोल्यूशन लाने से, जब जनता ने कहा कि ये शोषण नहीं सहेंगे. तो जब इस आज मैं देख रही हूँ थैंकफुली अ लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स हियर आर मेन. सो व्हेन वी स्टार्ट रेजिंग आवर वॉइस नॉट जस्ट एज विमेन बट एज अ कम्युनिटी विद मेन थिंकिंग एंड नोइंग कि अगर मेरी पत्नी को ये सुविधा नहीं मिलती है तो उसकी सेहत पे क्या असर पड़ता है, अगर मेरी बेटी को ये सुविधा नहीं मिलती है तो कल को उसकी पढ़ाई लिखाई कैसे बेकार होती है, या हो सकता है वो एग्ज़ाम देने ना. सो द अवेकनिंग विल नॉट कम थ्रू जजमेंट्स फ्रॉम द कोर्ट. करेक्ट. They will come when the government will make sincere efforts. They are making. But हमें CSR allocations में, public participation में एक जो major change हमारे देखते देखते आया है from us in medical school and now almost out of practice के बीच में, that menstruation is being openly talked about. मुझे याद है जब हम लोग स्कूल में थे और नया नया दूरदर्शन आया था तो अगर सैनिटरी नैपकिन की ऐड आ जाती थी तो उससे पहले ही हम लोग वहाँ से भाग जाते थे या भगा दिए जाते थे, बिकॉज इट वाज सो एम्बैरेसिंग कि हम अपने घर वालों के साथ बैठ के सैनिटरी नैपकिन की ऐड को विटनेस करें. एंड नाउ हम अपने पियन के सामने भी कि वो सैनिटरी नैपकिन वाला डब्बा रखा है, वो सैनिटरी नैपकिन की डिस्ट्रीब्यूशन होनी है. आई मीन ईच वन इज टॉकिंग. तो पहली तो बातचीत है, अवेकनिंग है, उसकी शुरुआत हो गई है. इंशाअल्लाह हम मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे. इंशाल्लाह ज़रूर पहुंचेंगे. बहुत ही खूबसूरत बात डॉक्टर आपने कही, लेकिन इसके साथ मेरे जहन में एक दूसरा सवाल जो आता है वो ये है. पहले मैडम ये पंखा बंद करवा दीजिए प्लीज़. आई एम फीलिंग लिटिल अनकम्फर्टेबल इफ़ इट इज़ पॉसिबल. थैंक यू. सो दूसरा सवाल ये आता है कि सरकार ने तो ऐसी बहुत सी नीतियाँ आई, एपेक्स कोर्ट ने बहुत सी बातें पुरानी पहले समय में भी कहीं, आज एपेक्स कोर्ट ने बहुत खूबसूरत बात कही, बड़ा ह्यू एंड क्राई है उसके लिए, जो बहुत लोग खुश होकर एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, हम जैसे लोग और हम जैसे यहाँ बैठे लाइक माइंडेड पीपल. लेकिन डॉक्टर जैन, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जैसे डॉक्टर्स जिनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ हैं, सर्जरी भी करना है, OPD भी करना है, रेशियो ऑलरेडी बहुत तंग है पेशेंट डॉक्टर का हिंदुस्तान में, और हिमालयन रीजन में यहाँ पर और मुश्किल है. तो ये एक डेकोरेशन की तरह आएगा और सब पोस्टर लग जाएंगे सेंसिटाइजेशन के लिए, या वाकई धरातल पे होने में इसकी संभावनाएं बनेगी? डॉक्टर ने संभावना की बात कही, पर एट द सेम टाइम हमें ये समझना होगा कि आप लोगों का बर्डन कितना खासा बढ़ने वाला है, और अगर बढ़ने वाला है तो उसके लिए आपकी क्या रणनीति है, क्या स्ट्रैटेजी है? आपने सवाल अच्छा पूछा कि लेकिन जो ये वाली बात जो आई से कि डॉक्टर गीता खन्ना से मैं सहमत हूँ कि जब हम उस टाइम हम ऐड भी नहीं देख पाते थे अपने पेरेंट्स के संग बैठ के. और आपको ये भी याद होगा कि अगर आप, वो आज भी है शायद, अगर केमिस्ट की दुकान पे आप जाएंगे तो अगर आप सैनिटरी नैपकिन मांगा तो वो ब्राउन पेपर में रैप करके देता है. लेकिन अगर वैसे अगर आप मॉल में जाओ तो यू कैन चूज़ वट एवर यू वॉन्ट. तो दैट ओपननेस हैज़ कम इन टुडे. और एक सोशल मीडिया
हैज़ प्लेड अ वेरी ग्रेट रोल कि उस अब गर्ल्स को ऑलरेडी दे आर अवेयर, like being a gynecologist and when I sit in the OPDs, तो now the girls are, अब हमें ये सवाल जो आज से हम 20 साल पहले हम जो मेट्रोज़ में पूछते थे, आर यू सेक्शुअली एक्टिव, तो now the girls they are aware the menstruation problem की क्या है and what should we use these pads, should we use the homemade cloth or should we not use, तो they are fully aware of all these things and social media has created a very big role in educating them. और एक ये भी बात है कि जो टैबू था तो वो टैबू धीरे धीरे आई फील वो धीरे धीरे कम हो रहा है. येस, मनी की जैसे जो सैनिटरी नैपकिन जो आपने कहा कि उसी में ना रह जाए, तो गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड ईदर फ्री विच इज़ नॉट पॉसिबल और अफोर्डेबल सैनिटरी नैपकिन्स का जो वो एक अफोर्डेबल प्राइस पे इफ़ दे विल बी गिवन एंड एज अ directive from the court has come. So I think that should go a long way in supporting us. Correct, doctor. So in extension to the same question, Dr. Jain, menstruation अकेला, पहली चीज़ तो ये एक समस्या नहीं है, एक डिसऑर्डर नहीं है, एक डिजीज़ नहीं है, नेचुरल प्रोसेस है, हमें कंप्लीट करता है. बट बहुत से तबके इसको एक बीमारी की तरह से ही आज भी लेते हैं. एजुकेशन की कमी आज भी है और मेंस्ट्रुएशन से कई और समस्याएं, यूरो गायनेकोलॉजिस्ट, कई और समस्याएं जुड़ी हैं, सर्वाइकल कैंसर, पीसीओडी, पीसीओएस. इसका सेंसिटाइजेशन साथ में होना संभव है कि नहीं और इससे कैसे डील किया जाए? देखिए, जो सर्वाइकल कैंसर है, मैं आप सबका ध्यान इस बात पे आकर्षित करना चाहूँगी कि हमारे देश में हर 8 मिनट में एक औरत की डेथ हो रही है सर्वाइकल कैंसर से. द मोस्ट कॉमन जेनिटल ट्रैक्ट कैंसर वो सर्वाइकल कैंसर है हिंदुस्तान में. वैसे ओवरऑल ब्रेस्ट कैंसर है, लेकिन अगर जेनिटल ट्रैक्ट कैंसर्स की बात करें तो वो सर्वाइकल कैंसर है. हर 8 मिनट में वी आर लूजिंग 1 वुमेन टू सर्वाइकल कैंसर. अब आप सबको ये भी सर्वाइकल कैंसर का जो एक सबसे बड़ा कारण है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है. अभी लास्ट मंथ ही फरवरी में नेशनल प्रोग्राम मोदी जी ने लॉन्च किया टू वैक्सीनेट आवर एडोलेसेंट गर्ल्स अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर बाय दिस वैक्सीन. इट इज़ अ 4 स्ट्रेन वैक्सीन, सर्वावैक के नाम से. हम अगेंस्ट 4 मेन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के अगेंस्ट ये वैक्सीन आई है और हम 9 से 14 साल की किशोरियों को ये वैक्सीन लगाने का हम लोगों ने ये डायरेक्टिव आया है. सो दैट बिकॉज HPV इज़ वन ऑफ द कॉजेज और वन ऑफ द मेन कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ सर्वाइकल कैंसर्स. लेकिन यूजिंग ऑफ अनहाइजीनिक सैनिटरी नैपकिन्स is also one of the causative factors. क्योंकि आप अनहाइजीनिक सैनिटरी नैपकिन्स आप यूज़ कर रहे हैं, गंदे हैं वो, तो दैट विल कॉज लॉट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस विच अगेन वुड कैन बी अ कॉजेटिव फैक्टर एंड विल लीड टू सर्वाइकल कैंसर. तो ये बात समझाना बहुत ज़रूरी है बच्चों को और उससे ज़्यादा उनके पेरेंट्स को. तो वो क्योंकि एक जाता है कि हमारी दादी ने भी यूज़ किया, नानी ने भी किया, बहनें भी यही करती थी, हमने भी किया, तुम कौन सी नहीं हो. नहीं, तो बिकॉज एवरी 8 मिनट्स वी आर लूजिंग अ वुमेन टू सर्वाइकल कैंसर. तो दिस हैज़ टू बी ब्रॉट इन, उन्हें बताना पड़ेगा. एंड द हेड ऑफ द फैमिली, जो एक आज बहुत अच्छी बात है मैम ने पॉइंट आउट भी करी कि बड़े सारे मेल्स बैठे हैं, तो जो घर का एक्सपेंडिचर कौन डिसाइड करता है? इट इज़ द हेड ऑफ द फैमिली और द फादर हु इज़ डिसाइडिंग. तो फादर ऑल्सो हैज़ टू रियलाइज़ कि नहीं, दिस सैनिटरी नैपकिन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर माई वाइफ एंड फॉर माई डॉटर. तो क्योंकि इससे इस कल को रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा, उससे ही बचेगी और सबसे इंपॉर्टेंट सर्वाइकल कैंसर से बच सकती है. और दूसरी बात, वील हैव टू ब्रिंग इन द आशाज ऑल्सो. तो आशा और जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, कि वो लोकल डायलेक्ट में समझा पाएँ हमारी माँओं को, बहनों को, बेटियों को कि नहीं, ये जो है हमें साफ हमें हाइजीनिक हमें प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन. और ये सर्वाइकल कैंसर जैसे अब वैक्सीन लगाने जाओगे कि नहीं हमें तो ज़रूरत ही नहीं, हम तो नहीं लगाएंगे. तो द आशा एंड द आंगनवाड़ीज़ दे कैन एनफोर्स, और वो उनको समझा सकती हैं. क्योंकि जैसे पेशेंट आता है, किसने बोला हुआ आता है हमारे पास आता है बच्चे निकालने के लिए बोला, किसने बोला? वो आशा ने बोला है. तो आशा का इतना ज़्यादा प्रभाव है, वो समझा सकती है. तो अगर वो मोटिवेट करेगी, वो बताएगी कि नहीं आपको अपनी बेटी को ये वैक्सीन लगानी चाहिए, आपको ये सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करने चाहिए, तो दैट वुड गो अ लॉन्ग वे. I would like to add on to what ma'am has said. ये menstrual hygiene as a national program and national initiatives is nothing new. I have been a master trainer for that when it was launched in 2015.
the menstrual hygiene concept, but it did not downsize, probably because of the lack of publicity, क्योंकि वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती रही. और एक ऐसा देश जहाँ पर सर्वाइकल वैक्सीन को फ्री करा जा सकता है, एक ऐसी गवर्नमेंट विच इज़ कमिटेड टू विमेन हेल्थ टू दैट एक्सटेंट, जो लड़की बच्चियों को लेके इतनी संजीदा है, वहाँ पर सैनिटरी नैपकिन का सब्सिडी, सैनिटरी नैपकिन की मैन्युफैक्चरिंग्स पे इंसेंटिव, सो द होल मशीनरी नीड्स टू बी गियर्ड अप. एक बार मिलने लगेगा सैनिटरी नैपकिन एट लो कॉस्ट और उसके अंदर से वो प्रॉफिट वाला एलिमेंट निकल जाएगा, तो आई एम श्योर. और वी ऑलरेडी हैव दीज लो कॉस्ट बायोडिजेनरेटिव sanitary napkins available at our Jan Aushadhi Kendra, and the cost is minuscule. पूरे पैकेट की कॉस्ट एक हाई एंड कंपनी के सैनिटरी नैपकिन से कम है. सो ओनली थिंग इज दैट द पॉलिसी मेकर्स हैव टू डू सम रिवर्स वर्किंग ऑन इट, bring out the drive out the economics of direct benefits out of it, pool in, now here the business model, pool in our CSR and subsidies to encourage cottage industry for manufacturing good quality sanitary napkins, make them easy available. I know the time is up, Still but one two last questions. thing that I still have to tell. Two questions I still have. See, doctors have joined us. They have come so far. They have come thus far, not to come only till this level. So we Supply have chains. No, but there's one thing. Yeah. In the policy, the supply chain. Yes. The supply chain is not being calculated. I don't know what kind of administrative work our administrative policy makers are doing, because you would find one sanitary vending machine in so many government schools, slum areas, here, there, everywhere. But they're all Empty. vacant. They're all empty and they have rusted out because the supply chain was neither thought of nor managed. So I think there we need to work out. Absolutely, doctor. So we still need. So we will. I still have a few questions which are very essential for all of us to know, because here we have stakeholders और सबका यहाँ पे आने का कोई interest है. Keeping that interest in cognizance, we have CSO representatives, we have industry representatives, researchers in government. Keeping all these stakeholders in mind. You know, ma'am, आपने दो बहुत खूबसूरत बातें ये कहीं कि पहला supply chain is checkered, right? There is a situation which is not, leading us to where we want to. Second, before this apex court's, verdict, हमारे पास पहले भी नीतियाँ पॉलिसीज़ थी, पहले भी सैनिटरी पैड्स फ्री दिए जाते थे, लेकिन सेंसिटाइजेशन वाज अ प्रॉब्लम. डॉक्टर खन्ना एंड डॉक्टर जैन, मैं ये आपको कहना चाहूँगी, और आप खुद भी हम सबसे शायद बेहतर जानते हैं, आप लोग जिस जगह पे बैठे हैं, कि बहुत से ऐसे CSOs हैं जहाँ पे या वहाँ पर हम जैसे लोगों का रोल शुरू होता है. ठीक है, सेंसिटाइजेशन में, एजुकेशन में एंड ऑल दैट. सो अगर गवर्नमेंट हम जैसे CSOs को, रिसर्च पार्टनर्स को, NGOs को जोड़ती है, तो सेंसिटाइजेशन तो पॉसिबल होगा ही होगा, बेहतर होगा ही होगा. एट द सेम टाइम जो हम दूसरे पॉइंट पर आ रहे हैं, प्रॉब्लम ऑफ एंगेजमेंट एंड एक्सपीरियंस विच इज़ कमिंग आउट ऑफ इट. पॉलिसीज़ पहले भी थी, पॉलिसीज़ आज भी हैं और पॉलिसीज़ कल भी आएंगी, लेकिन एक्सपीरियंस ऑफ द स्टेक होल्डर, ऑफ द बेनिफिशियरीज स्टिल, it was problematic then, it is problematic today. And how and what, in quick two-liners, एक पहली चीज़ जो जहन में आपकी आती है, उसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को? जैसे सर्वाइकल वैक्सीन के लिए हमने सर्वाइकल वैक्सीन ले आए कैंसर प्रिवेंशन के नाम पे. ठीक है. अपटेक भी बहुत सुंदर होगा. हेपेटाइटिस बी भी ऐसे ही सक्सेसफुल हुई थी. Correct. शुरुआत हुई थी तब बहुत महंगी है, तो अभी भी उसको कुछ ऐसा लिंकेज देना जो मैडम ने कहा, बट दैट्स इनडायरेक्ट. सर्वाइकल कैंसर, पेपिलोमा वायरस, तो दे डायरेक्ट एविडेंस था, पब्लिक में बात आई, सरकार ने, पॉलिटिकल विल तो है, बट पब्लिक को इनडायरेक्ट लिंकेजेस समझानी होंगी और उसे इकोनमाइज करना होगा थ्रू द गवर्नमेंट एफर्ट्स. पॉलिटिकल सिस्टम आई थिंक इस समय बहुत सिंसियर है, बट द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एज स्कूल अथॉरिटी कमीशन चेयर, आई वुड से हमें स्कूल की लाइसेंसिंग, Yes. उनकी सैनिटरी नैपकिन्स,
उनकी अवेलेबिलिटी, रेगुलर मॉनिटरिंग एट द स्कूल लेवल कि क्या मिलता है, हाउ मच ऑफ एब्सेंटिज्म might be something like the Tatva people are just narrated, some kind of Google linkages कि कितना स्कूल मिस करना पड़ा because the toilet was not there. और कैसे बात करेंगे जब टॉयलेट्स ही नहीं है, कितना भी सैनिटरी नैपकिन दे दीजिए, बच्ची बदलेगी कहाँ? टॉयलेट है तो पानी जब नहीं टॉयलेट ही नहीं है और टॉयलेट है तो पानी नहीं है। पानी और है तो अभी साबुन भी नहीं। हमारे सरकारी स्कूलों में बहुत सारे सरकारी स्कूलों में अब बात हो रही है कि हम टॉयलेट्स बना देंगे, बट लेट मी हियर से इट ऑन स्टेज दैट प्राइवेट स्कूल्स आर नो बेटर. Those low cost modern education has killed that whole spirit and hygiene, in spite of Swachh Bharat and all that our Prime Minister has infused ever since he has taken charge, we are still far away. So सबसे पहले तो इंफ्रा की बात करें, फिर मैन्युफैक्चरिंग की और फिर सप्लाई चेन को इंश्योर करने की, और उसके बाद डिजिटली हम ये देखें कि क्या वो उपयोग में आ रहे हैं और क्या हमारी पॉलिसी और सरकार के और कोर्ट के आदेशों का अनुपालन हो भी रहा है और उसका कुछ फ़ायदा है कि नहीं. Wonderful. Doctor, last question to both of you. Question is same, answers are going to be definitely different. Dr. Jain, इस verdict के बाद चीज़ें बदलेंगी for sure. आपका as a principal, as a dean of government college, आपका क्या रोल होने वाला है, आपका क्या योगदान होने वाला है, अगर हम इसको जानना चाहें. सेम क्वेश्चन गोज फॉर यू एज द चेयर ऑफ द कमीशन एंड एज अ डॉक्टर ऑल्सो. What is going to be your contribution in making this verdict a successful verdict for all of us? Like I am heading the medical college, so the role like will be the as the principal we would like to ensure that the menstrual hygiene and it doesn't become a taboo. It's like the doctors who are trained and come out of the medical colleges, they are able to deal with the patients, especially the adolescent girls and their mothers, and they are able to tackle the issue, and they are able to tell the mother and the child and the adolescent girl कि no, this is ये आपका right है, this is not something to be ashamed of. This is something which has to be discussed, and there are so many problems which can come out of not using the sanitary napkins, not using the hygienic products. And so these and the various, you have to give them a basket of choice. Like even a menstrual cup is available today, even tampons are available, even the sanitary napkins are available which were used from long back. So the doctors who are trained and who come out and who will be sitting in practice tomorrow, who will be the treating physicians for us also tomorrow. So they should be able to tackle this problem efficiently, and they should be able to discuss and talk with the patients, especially the adolescent girls and their mothers, what are the implications of not using hygienic menstrual products, and why this vaccination is important for your daughter. How cervical cancer is one of the biggest killer of ladies in our country. So this as a principal and the dean, I would like to ensure that my residents, my doctors who come out of the college, they are trained in that. And another thing is like Doon Medical College, like there is a WHO strategy to prevent cervical cancer by 2030. It says 90, 70, 90. So they say that 90% of the adolescent girls, they should be vaccinated against cervical cancer by this HPV vaccine. 70% should be screened by a high-risk screening test, that is pap smear and a high-risk HPV. And 90% of the precancerous lesions or the cancerous lesions, they should be managed. So I would like to tell all of you that Doon Medical College and the hospital, we are doing cervical cancer screening in the hospital, in the gynae OPD on a regular basis. So we are doing pap smears, and the recommendation of WHO are that at least 2 tests should be done at the age of 35 and 45. So I think this we are ensuring that our doctors who come out, so they are fully trained and they should be able to tackle these problems efficiently. So like she rightly said, as doctors, giving enough training, opportunity and forum to it. As administrator, I doubt you said as administrator, most of the doctors even at those positions,
have very little role in materializing the policies of the government or the court orders. Let me be very honest. As commission also, I think all we can do is make noises. And of course, as commission chair and appellate authority of schools, we are soon going to have this national conference, which I am hosting. And we would make sure we are committed to making menstrual hygiene efforts of the school one of the factors for getting a NOC for running a school, be it sarkari or private or aided, and colleges, I think, should be no exception. So to start with, the administrative chain, political will, we have seen the concern of our government for women health, for a girl child safety is very palpable. We at the commission know that, how sincerely they are doing it, but we need to scale it up amongst the community. And of course, the community has to wake up to the need, make a noise for themselves. We have to be, of course, the loudspeakers for them. Wow. Applaud to thing both more, of you. And yeah. To summarize this One thing, conversation. madam, one thing more Yes, I would yes, like to say. I do not know whether आप लोग भी सही लगता होगा नहीं लगता होगा, but sometimes I feel जैसे when we go to conferences, we honor our dignitaries. So can we Yes. think of something ki, like supposing like today we are having this conference, so instead of giving this small Bouquet. memento or a bouquet, so can we have, like madam said, all the vending machines, they are empty. So can such a, like we can have ki, like this organization like Velox, the conference was held at Hayat, and they donated so much, one, let's say some thousand or whatever, a number, this much sanitary napkins were donated. And there should be a central pool where they can be given and they can be A bank. distributed to various schools. So this would go a long way, क्योंकि the money तो उतना ही है. Whether आप उसको चाहे बुके में खर्च कर दीजिए या if we spent it in those sanitary napkins, that would go a very long way. Beautiful. So thank you, doctors. Great applaud to both of you and a lot of Geeta Gyan, definitely. So thanks for that. To summarize this discussion in last 30 seconds, मैं सिर्फ सवाल पूछने के लिए यहाँ नहीं बैठी थी, कटघरे में नहीं खड़ा किया था आपको, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है और ये सवाल मुझ पर भी आना चाहिए कि तुम क्या करोगी. तो मैं ये सिर्फ कह सकती हूँ और सारे CSO फ्रेंड्स के बिहाफ पे ही कह सकती हूँ, इम्पैक्ट इनेबलर्स के बिहाफ पे ही कह सकती हूँ, marry with us. Make us enablers, make us ecosystem partners, marry with us, and things gonna be fine. Yes? Correct. To summarize this, beautiful points. So we are going to be implementing, and we are already in the process of implementation, this particular verdict of the Apex Court. It is not a simple journey. It is going to be very, very tedious, very tough, very, very cumbersome, because we are a different state with different status. We are hilly terrain and we are difficult people. But to make it happen, we need to be determined. We have political will. We have bureaucracy ka bhi will with us. We have CSO partners. We have doctors and institutions like such who are there as our backbone. So looking forward to work together in making this ecosystem more strong and making Uttarakhand a beautiful state in this aspect as well. Thank you so much for your time. Thank you.